Good morning, friend. My name is Deepak Singh Bish. Today's we will learn about next chapter 6. This chapter learning objective is introduction of cost center, how to create cost center and multi cost center, how to create cost category and cost center class. These three topics we will discussion. It help us to identify the revenue nature transaction and expense nature transaction. It is subcategories to analyze the each element to analyze the data. After we will learn about the reports like trial balance, profit and loss account, cost center summary, cost center breakup, ledger breakup. Breakup means you have advertisement, and advertisement is broader aspect, and it advertisement type, suppose newspaper, TV pamphlets. These are the newspaper, local newspaper use paper. Every business maintain income and expense account. We will explore further subcategory income and expense account. You need to allocate the breakup of income and expenses to different cost center. You can use cost center capability in Teleprime that you unable to allocate income and expenses to cost center in your business. The whole process is used to prepare category report. Example, staff welfare. Staff welfare is broader aspect like health, medical health, AIDS, tea, and these are the staff welfare. And projects, A project, B project, C project. We will types. These type we can help to analyze employee, wages employee, skills employee, unskills employee. We can divided it. Payment recovery, convention. These all the methods are used. We can divided expense account and income account. Cost center, we will simply create cost center. If you have create cost center for the first time, the Tally Prime promote to you enable cost center first the company. These cost center will be available for allocated while recording transaction. The step is go to gateway of Tally, then create master cost center. After that, press enter. In case the company feature is not activate, you will prompt to activate the cost center feature. Select yes. अगर आपके ने जो कंपनी ओपन की है उसके अंदर कॉस्ट सेंटर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट करना, एक्टिवेट करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर को. उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे टैली पे. यहाँ पे आप ऑल्ट के प्रेस करोगे, जाओगे फीचर्स. फीचर के अंदर जैसे ही जाओगे वहां पे आपको अनेबल कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन मिलेगी, उसको यस करना है. लेट्स सी द एग्जांपल. सपोज company want to market advertisement in different media. These are the TV advertisement, paper advertisement and local advertisement. And advertisement expense is total paid from HDFC Bank of 30,000. The expense is actually divided in number of advertisement media. We have took three media. First, TV advertisement media, paper media and local media. We divided the 30,000 amounted in TV advertisement 15,000 and paper advertisement is 7,500. Less after that balance is local advertisement 7,500. These all the advertisement allocated.
TV expense advertisement 15,000, paper advertisement 7,500. You press Alt K, press F11. After that you see highlighted yellow color enable cost center. No, you can see no, you can yes, then activate your cost center. I have already show you these steps. You can see if in case you are not showing show more and cost center selected. अब हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। सबसे पहले हमने टीवी एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट किया हुआ था। कॉस्ट सेंटर क्रिएशन के अंदर जाएंगे, टीवी एडवर्टीजमेंट, पेपर एडवर्टीजमेंट, राइट डाउन, and local advertisement. These are the cost centers our. After that we will create a ledger name advertisement expense under indirect expenses. If you can see here, we will not founding here, we will not founding here one option. I can show you. Press F12, apply cost center for the ledger. In case you not in case is no, there is no visible here. Look like this. Here is not visible cost center for the ledger. Apply cost center for the ledger. That's mean you can applicable of cost center class. अगर आप लेजर के अंदर एप्लीकेबल करना चाहते हैं कॉस्ट सेंटर को, तो हमें लेजर के अंदर क्या करना पड़ेगा, F12 प्रेस करके अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इस ऑप्शन को यस करना है तो आपको ये डिस्प्ले होगा। अब हमने क्रिएट कर लिया है लेजर को, ये ऑलरेडी देख चुके हो। अब हम एक वाउचर बनाएंगे जिसमें क्या है, हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है 30,000 को, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया था एडवर्टीजमेंट को। टीवी एडवर्टीजमेंट हो गया, पेपर एडवर्टीजमेंट हो गया, लोकल एडवर्टीजमेंट। तो किस तरह हम लोग कॉस्ट सेंटर में एक्टिवेट करेंगे एक वाउचर में। गेटवे टैली पे जाओगे, F5 प्रेस करोगे, हमारी जर्नल एंट्री क्या है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की 30,000, यहाँ पे ये 21,000 है, इसको करेक्ट कर लेना। हम लोग जनरली इस तरीके से पास करते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, लेकिन क्या है हमारा कॉस्ट सेंटर क्या है एप्लीकेबल, जो हमने एप्लीकेबल किया था लेजर का, इस प्रकार आएगा कि 30,000 हमने किस तरह यूटिलाइज किए हुए हैं। तो हम सबसे पहले टीवी एडवर्टीजमेंट 15,000, पेपर एडवर्टीजमेंट 7,500, लोकल एडवर्टीजमेंट 7,500 और क्रेडिट करोगे HDFC बैंक 30,000। उसके बाद आप नरेशन पास करोगे, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड 30,000। अब हम लोग रिपोर्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे फाइनेंसिंग अकाउंट्स में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम लोग ट्रायल बैलेंस में देखेंगे। डेबिट साइड में हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दिखेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर यू कैन विजिबल। यहाँ पे हमने येलो कलर पे हाईलाइटेड किया हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 30,000 का, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपन करोगे तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, अगर इस तरीके का आपका खुल नहीं रहा है तो आपने बैलेंस शीट ओपन करनी है, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो इस तरीके से विजिबल होगी आपको। अब हम लोग कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स देखेंगे। सबसे पहले आपने गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर समरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप, ये 3 तरह की रिपोर्ट्स हैं जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर
का यूटिलाइज क्या है कि हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हैं, मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट के अंदर हमने किसके अंदर ये खर्चा किया है। तो हम लोग उसको कॉस्ट सेंटर के अंदर करते हैं। कॉस्ट सेंटर समरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब है कि हम मंथ वाइज देख सकते हैं, डे वाइज देख सकते हैं, क्वार्टर वाइज देख सकते हैं, ईयरली देख सकते हैं। और लेजर ब्रेकअप का मतलब है कि हम लोग पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सब डिवाइडेड आ जाती हैं जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं, पेपर एडवर्टीजमेंट, टीवी एडवर्टीजमेंट एंड लोकल एडवर्टीजमेंट। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास येलो कलर का व्यू दिख रहा है कॉस्ट सेंटर समरी का। आप सबसे पहले क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद कॉस्ट सेंटर आपको डिस्प्ले होगा। इसमें से फर्स्ट रिपोर्ट है कॉस्ट सेंटर समरी। कॉस्ट सेंटर समरी सिंपली आपको ये डिस्प्ले कराएगी कि किस तरह दिखता है आपको, ये उसका अल्टरनेटिव स्टेप है। इस तरीके से आपको कॉस्ट सेंटर समरी दिखेगी। लोकल एडवर्टीजमेंट, पेपर एडवर्टीजमेंट, टीवी एडवर्टीजमेंट, ये हमारे क्या है, कॉस्ट सेंटर्स हैं जिसमें हमने एलोकेट किए हुए हैं अपनी कॉस्ट को। अब ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, ये हमें हमारे इनकम और एक्सपेंस को क्या करती हैं, कोई भी लेजर है उसको क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें की एक्सपेंस में हमने किस किस पे लगाया हुआ है, तो हमें ये ब्रेकअप करने पे हेल्प करती है। इन एज इन अदर रिपोर्ट यू कैन एक्सप्लोर ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन का मतलब ये हम लोग क्लिक करेंगे उसके अंदर और दिखाएगा, क्लिक करोगे उसके अंदर और एट लास्ट लेवल ऑफ ड्रिल डाउन यू कैन ऑल्टर द कंट्रीब्यूशन ट्रांजैक्शंस। ब्रेकअप कॉस्ट सेंटर किस प्रकार ओपन करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कंपेयर कर सकते हैं हम लोग बिजनेस डाटा को मंथ में। ये आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप हमने किस प्रकार किया हुआ है। यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल एंट्री मारी है। अगर हम दो तारीख को भी एंट्री करेंगे एडवर्टीजमेंट की, तो हम लोग इस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं कि किस मंथ में हमने कौन सा एक्सपेंस किया हुआ है। अब हमने सिंपल कॉस्ट सेंटर बनाया था तो इसीलिए ये किसके अंदर आ रहा है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आ रहा है। लोकल एडवर्टीजमेंट 7500, पेपर एडवर्टीजमेंट, पेपर एडवर्टीजमेंट के अंदर आपका टेम्पलेट्स आता है, न्यूज़पेपर आता है। तो ये कोई भी मीडियम हो जिसके थ्रू आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। टीवी एडवर्टीजमेंट हो गया जिसके अंदर न्यूज जो पॉपुलर सीरीज आते हैं उसमें कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है। जो न्यूज आती है उसमें एडवर्टीजमेंट दे सकती है। ये मेथड्स हैं जो कंपनी एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद मल्टीपल कॉस्ट सेंटर आप लोग क्रिएट कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, आपने गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, वहां पे आपने सिलेक्ट करना है चार्ट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर पे प्रेस करना है। अगर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा तो आपको एक्टिवेट करना है शो मोर पे और प्रेस करना है ऑल्ट एच। ऑल्ट एच प्रेस करते ही यस, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आपने खुद से एक्टिवेट करना है और यस ऑप्शन को प्रोसीड करना है। इस तरीके का आपका मल्टी कॉस्ट सेंटर आ जाएगा। सबसे पहले आपने पेपर एडवर्टीजमेंट अंडर किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। सेकंड टीवी एडवर्टीजमेंट प्राइमरी के अंदर, लोकल एडवर्टीजमेंट प्राइमरी के अंदर। हम लोग इस तरीके से कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी कॉस्ट सेंटर। अल्टरनेट करने का तरीका भी ये है कि आपने जो पहले बनाए हुए हैं कॉस्ट सेंटर उसके अंदर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, ऑल्ट के प्रेस करोगे और ऑल्ट सॉरी आप प्रेस करोगे ऑल्टर करने के लिए गेटवे ऑफ टैली और ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, वहां पे कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करोगे। अब एक साथ करना है तो हमें गेटवे ऑफ टैली
चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है और वहां पे आपने सिलेक्ट करना है कॉस्ट सेंटर्स को। अभी तक हमने सिंपली क्रिएट करना सीखा था। कॉस्ट सेंटर क्यों बनाते हैं? कॉस्ट सेंटर हम लोग इसलिए बनाते हैं, हम अपनी इनकम को क्या है या कोई भी एक्सपेंस को उसके अंदर हम लोग किस प्रकार खर्च कर रहे हैं। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक ब्रॉडर टर्म हो गया, हम जानना चाहते हैं कि फर्दर इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पे हमने खर्च किए हैं, तो हमने उसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी देखा लोकल न्यूज़पेपर हो गया, पे टीवी एडवर्टीजमेंट हो गया, तो ये सब एडवर्टीजमेंट को हमने कॉस्ट कैटेगरी हम लोग अब जो हमने क्रिएट किया था बाय डिफॉल्ट प्राइमरी में किया था, अब हम लोग कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से। तो introduce cost category is useful for the organization that required allocate of revenue and non-revenue items to parallel set of cost centers. Cost center facility third dimension report of expenditure and revenue. Normally when any expense and income come in account, it allocate in specify expense and income head. अब कॉस्ट कैटेगरी सबसे पहले हमें कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट के प्रेस करोगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली चल जाओगे, वहां पे आप क्रिएट पे जाओगे, क्रिएट पे आपने सिलेक्ट करना है कॉस्ट कैटेगरी, देन प्रेस एंटर करना है। और मल्टीपल क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने के लिए। अब यूजेस क्या है, कॉस्ट कैटेगरी करने से हमें ये बेनिफिट मिलती है कि हम लोग रिपोर्ट को क्या है सेपरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मल्टीपल एंट्री होगी, आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे उस रिपोर्ट को, वहां पे आपको क्या है सब एक साथ दिखेंगे। अब हम कॉस्ट सेंटर इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी रिपोर्ट्स को क्या है मोर फ्लेक्सिबल बना सकें, कैटेगराइज लेवल वाइज बना सकें, तो इसीलिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं कॉस्ट सेंटर्स। ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टेप्स कैसे क्रिएट करना है, ये देख सकते हैं आप, गेटवे टैली क्रिएट शो मोर पे जाना है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आपको कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। ये आपसे पूछेगा कि प्राइमरी के अलावा कोई और क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर, हमने कहा क्रिएट करना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नाम से, तो हमने क्या रखा टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे आपने एलोकेट रेवेन्यू को क्या करना है, यस करना है। उसके बाद क्रिएट कॉस्ट सेंटर, क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर को। कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा हमने सिंपल क्रिएट किया था, अब हमारे पास एक नया ऑप्शन आपको विजिबल होगा यहाँ पे कैटेगरी का। सिंपल में हमें नहीं दिखता था, अब हमने कैटेगरी बना दिया, तो हमने यहाँ पे टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने नेम दिया पेपर एडवर्टीजमेंट अंडर प्राइमरी, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अनदर वन हम क्रिएट करेंगे, टाइप क्या है एडवर्टीजमेंट, कैटेगरी टाइप एडवर्टीजमेंट, नेम टीवी एडवर्टीजमेंट अंडर प्राइमरी, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। नेक्स्ट इज योर टाइप एडवर्टीजमेंट कैटेगरी, ये आपको खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये कैटेगरी ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। आपने किस कैटेगरी के अंदर डिस्प्ले करना है ये आपको सेट करना पड़ेगा। नेम लोकल एडवर्टीजमेंट अंडर कंट्रोल ए। आफ्टर दैट आपने जर्नल एंट्री पास करना है। आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू SDFC 30,000। अब हम क्या है रिपोर्ट में ये भी विजिबल हो रहा है कि ये 30,000 हमने किस प्रकार खर्च किए, इसकी कैटेगरी आपको डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे जर्नल एंट्री में टाइप एडवर्टीजमेंट। ये आपको पिछले रिपोर्ट जब हमने सिंपल कॉस्ट सेंटर किया था उसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा था, आपको सिर्फ टीवी एडवर्टीजमेंट 15,000। यहाँ पे हमें कैटेगरी भी शो हो रही है कि हमने ये किस कैटेगरी के में ये एक्सपेंस किए हुए हैं। इस तरीके से आपने कंट्रोल ए करके पेमेंट के अंदर सेव कर लेना है वाउचर को। अब किस प्रकार आपने रिपोर्ट देखना है ये मैं ऑलरेडी आपको
बना चुका हूँ ये कॉस्ट कैटेगरी समरी में। आपने क्या करना है, ये रिपोर्ट गेटवे टैली में जाना है, मोर रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, वहां पे आपने कॉस्ट कैटेगरी समरी को सिलेक्ट करना है। कॉस्ट कैटेगरी समरी के अंदर आप देख सकते हैं जो येलो कलर से हाईलाइटेड हो रहा है वो आपका क्या है, कैटेगरी है कि आपने टाइप एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या है, अंदर कौन से हैं, लोकल एडवर्टीजमेंट है, पेपर एडवर्टीजमेंट है और टाइप टीवी एडवर्टीजमेंट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अनदर रिपोर्ट कॉस्ट ब्रेकअप डेट वाइड आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर देख डिस्प्ले कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर ये हमारे लेजर वाइज हमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को देखेंगे तो हमें उसके अंदर टाइप ऑफ कैटेगरी दिखेगी। उसके बाद हमें कॉस्ट सेंटर है, लोकल एडवर्टीजमेंट, पेपर एडवर्टीजमेंट, ये क्या है हमारी कॉस्ट सेंटर्स हैं। अब थर्ड वन आता है कॉस्ट सेंटर क्लासेस, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई क्या कर सकें, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम उसको कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, अलग से कैटेगरी बना सकते हैं कि ये किस कैटेगरी पेमेंट। हमने टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट के अंदर एक क्लास बनानी है। हम यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि फिक्स परसेंट, सपोज फिक्स परसेंट पे हमने कोई एलोकेशन करनी है। सपोज गोदाम है हमारे पास दो, रामनगर और पीरुमदारा में, और सेम रेंट पड़ता है उनका 50-50% है। मान लो 5000 देता हूँ तो 50% 2500 उनका पड़ता है। तो आप अगर कॉस्ट क्लास कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि गेटवे टैली पे आपने जाना है, ऑल्ट की प्रेस करना है, वहां पे फीचर ऑप्शन में जाना है और आपने सबसे पहला जो है अनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करना है। जब तक ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं करोगे तो आपका ना तो लेजर में आएगा ना ही कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्लासेस का बेनिफिट ये है कि ये वाउचर के ऊपर अप्लाई होता है। इस तरीके से आपने कॉस्ट सेंटर क्लासेस को एक्टिवेट कर लेना है। अगर नहीं होता है तो शो मोर पे आपने ये देखना है। गेटवे टैली पे जाओगे, क्रिएट, अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि शो लेस आ रहा है, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। इसमें येलो कलर से कॉस्ट सेंटर क्लास आपको दिख रही है। अब हमने सबसे पहले कॉस्ट सेंटर क्लास क्या रखा, गोडाउन रेंट विदाउट, आप देख रहे हैं स्पेस के। इसके बाद आपने कैटेगरी बनानी है गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट क्या है, ये आपकी एक कैटेगरी है, दिस इज कैटेगरी। और पीरुमदारा और रामनगर ये क्या है, आपकी क्लास है। इस तरीके से हम आपने क्रिएट करना है। ये कुछ इस प्रकार डिस्प्ले होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी क्लास क्या है, गोडाउन रेंट है, आपकी कैटेगरी क्या है, गोडाउन रेंट। आपको ये फर्क भी दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी है क्लास पे और कैटेगरी में स्पेस दी हुई है। ये आपका क्या है, कॉस्ट सेंटर है। अब कॉस्ट सेंटर क्लासेस किस प्रकार, सेम प्रोसेस है, हम लोग जैसे कॉस्ट सेंटर क्लास बनाते हैं। सबसे पहले कॉस्ट सेंटर बनाना है। हमने कॉस्ट सेंटर क्लासेस आपने देख लिया, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट ये हमने कैटेगरी क्रिएट की हुई है। इसमें एलोकेट रेवेन्यू आइटम, ये आपके क्या रामनगर क्या है, कॉस्ट सेंटर है। इस प्रकार से क्रिएट होगा। नीचे एग्जांपल दी हुई है मैंने कि कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आपने रामनगर को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी क्या है, गोडाउन रेंट, नेम रामनगर, और ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये रामनगर, यहाँ पे हमने 50% दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज पीरुमदारा। अब पीरुमदारा का हमने क्रिएट कैसे किया है, कैटेगरी के अंदर गोडाउन रेंट
और नेम पिरुमदारा, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। अब हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं कि कंपनी ने पेड किए 10,000 गोडाउन रेंट, रामनगर और पिरुमदारा में क्या है 50% है, फिक्स्ड है, हर महीने डिपॉजिट करते हैं। तो हम लोग क्या है पेमेंट में जाएंगे। अब आपको यहाँ पे पिछली बार हमने क्या है लेजर के अंदर एक्टिवेट किया था। अब हम लोग उस ऑप्शन को यूज ना करके हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट करेंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे, F12 प्रेस करोगे आप यहाँ पे आप ऑप्शन को अनेबल करोगे। कौन से ऑप्शन है, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इस ऑप्शन को आपने क्या करना है, यस सिलेक्ट करना है। तो आपको इस तरीके का व्यू दिखेगा यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास। अब कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर आपने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे गोडाउन रेंट। अब आप देख सकते हैं इस तरीके की जर्नल एंट्री, यहाँ पे हमने गोडाउन रेंट विदाउट स्पेस में। अब ये सिंपल जर्नल एंट्री पास करोगे आप, कंट्रोल एक जैसे ही सेव करोगे इस एंट्री को, तो आप दोबारा से पेज अप ऑप्शन को दबाओगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा एंट्री। गोडाउन रेंट कैटेगरी दिख रही है आपको, पिरुमदारा 5000 रामनगर। ऑटोमेटिकली आपकी क्या है ये 10,000 को डिवाइडेड करोगे, फिक्स होती है ये और प्री डिफाइंड होती है कि हमने ये खर्चे हर महीने करने हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको ये भी पता लगता है कि ये 10,000 आइटम हमने खर्च कैसे किया हुआ है। अब हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं। तो आपको मैंने रिपोर्ट देखना बताया था, गेटवे टैली में जाएंगे, रिपोर्ट मोर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर जाओगे, वहां पे कॉस्ट सेंटर हमने कॉस्ट कैटेगरी समरी को सिलेक्ट करना है। तो गोडाउन रेंट आपका कैटेगरी है और क्लास क्या है पिरुमदारा और रामनगर। उसके बाद पेज ब्रेकअप लेजर रिपोर्ट है हमारी गोडाउन रेंट। आप हेडिंग यहाँ पे होता है जो भी हम लोग रिपोर्ट निकाल रहे होते हैं इस प्रकार दी होती है। अगर बैक चेक करोगे तब भी हमें यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी समरी दिया हुआ है। अब ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने क्या करना है, एक कैटेगरी क्रिएट करना है होलसेलर और रिटेलर। रिटेलर होलसेलर आपका क्या कैटेगरी है, ये आपका क्या है कॉस्ट सेंटर। रिटेलर आपका क्या है क्लास है और आपने क्या करना है, रिटेलर आपका कैटेगरी है और ये क्लास है। आपने इस तरीके का वाउचर क्रिएट करना है। जब भी हम सेल करेंगे कोई प्रोडक्ट तो हम या तो होलसेलर से होलसेलर को बेचें या फिर हम किसको बेच रहे हैं, रिटेलर को, इंडिविजुअल को। ये तुम्हें सेल्स वाउचर में करना है। यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड कॉस्ट सेंटर क्लास। रिटेलर सिलेक्ट किया है यानी कि मैं किसी इंडिविजुअल को दे रहा हूँ। अगर मैं होलसेलर से सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे होलसेलर। इस तरीके से आप लोग रिपोर्ट को सेग्रीगेट अलग अलग कर सकते हो कि हमने कौन से बिल रिटेलर को दिए, कौन से बिल हमने होलसेलर को दिए। इजीली आपको हेल्प मिलती है। आप सेकंड रिपोर्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कैटेगरी, ये हमारी जो भी सेल हुई वो किसको हो जाएगी, होलसेलर। इस प्रकार से आप लोग सेग्रीगेट कर सकते हो और ये तुम्हें आपको हेल्प करेगी एक पर्टिकुलर, जब भी आपने कोई रिपोर्ट मांगे कि होलसेलर का कितना सेल हुआ है या रिटेलर का कितना सेल हुआ है, तो हम लोग कॉस्ट कैटेगरी में से बता सकते हैं कि हमारी टोटल सेल्स होलसेलर की कितनी है और रिटेलर की कितनी है। अब हम कॉस्ट सेंटर का प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हमने ऑल्ट की प्रेस करना है, कंपनी में जाना है, फीचर सिलेक्ट करना है। आपने अनेबल कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना है, जो कि आप देख रहे हैं ये है ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं करोगे तो हम लोग एनालाइज नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन एक्सपेंस, जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं जैसे एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, उनको सब कैटेगराइज करने में हमारी हेल्प करता है। ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट कर दिया तो अब हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है क्रिएट। अगर ये आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा हमें
देख सकते हैं। कॉस्ट सेंटर की ये दिख रही है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से शो मोर करके यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं। कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए हमें टीवी एडवर्टीजमेंट कंट्रोल ए कर लोगे, उसके बाद हमारा पेपर कंट्रोल ए लोकल कंट्रोल ए। अब आपने ये कॉस्ट सेंटर बना लिया है। अब हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे जाओगे, लेजर, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नाम का ये ब्रॉडर एक्सपेक्ट है हमारा। अब ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो हमने किया है ये ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं मैं। ये ऑल्टर पे जाएंगे तो लेजर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट के अंदर रखा हुआ है। अब हम लोग वाउच ऑल्टर के अंदर आपको एक ऑप्शन बतानी थी। अगर आपने ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं की, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो ये आपको नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड बॉटम पे दिखेगा, F12 प्रेस करोगे, यहाँ पे आपने कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना है लेजर के अंदर। ये ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, अप्लाई कॉस्ट सेंटर लेजर। अगर ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका अप्लाई नहीं होगा कॉस्ट सेंटर। अब हमने एडवर्टीजमेंट की हुई है। अब हमने एडवर्टीजमेंट के लिए 30,000 का बजट निकाला, जिसमें से हम चाहते हैं कि टीवी में 15 और बाकी लोकल एड्स करें उसमें 7,500। एंड पेपर का मतलब है कि टेम्पलेट हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, और भी मीडियम हो सकते हैं जिसके थ्रू एडवर्टीज। अब हम लोग वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे, वाउचर। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं सिलेक्ट करना, हमने एक्टिवेट कर रखा है। अब आपने क्या करना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सिलेक्ट करोगे, आपने यहाँ पे टोटल अमाउंट देनी है 30,000। अब ये पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर में हमने आपको कॉस्ट सेंटर बनाया था तो उसमें हमने 3 नेम दिए थे। सबसे पेपर एडवर्टीजमेंट 7,500, टीवी एड 15,000, लास्ट वन रह गया लोकल। नरेशन पास करोगे, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी एडवर्टीजमेंट की एंट्री होगी। पेज अप करोगे तो आपकी ये आ गई HDFC बैंक से। अब हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं। डिस्प्ले पे जाओगे, ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नाम से दिख रहा है 30,000 जो हमने इस आप एंटर करोगे। अगर आप फर्दर एडवर्टीजमेंट की डिटेल देखना चाहते हैं तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा इफेक्ट पड़ता है, बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑल्ट F1 प्रेस करोगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपको शो होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस महीने में क्या खर्च किया है। इसी प्रकार आप सैलरी का भी बना सकते हो, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 पीपल हैं, आपकी कंपनी 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उस 1 लाख को किस किस को दे रही है, तो हम लोग उन पर्सन का नाम लिख सकते हैं सैलरी को मेंटेन करने के लिए। अब आते हैं कि कॉस्ट सेंटर की हम लोग रिपोर्ट कैसे करते हैं। डिस्प्ले पे जाओगे,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे फर्स्ट ये 4 प्रकार की रिपोर्ट होती है, कॉस्ट सेंटर समरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप एंड। अब हम कॉस्ट सेंटर समरी देखेंगे तो इसमें आपको सारी की सारी दिखेगी कि जो भी आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, जैसे हमने लोकल एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च किया है, पेपर एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च किया है, टीवी एड, ये एक्सपेंस का है। इसी प्रकार हम इनकम का भी बना सकते हैं, गोडाउन रेंट वगैरह, इस प्रकार आपको डिस्प्ले। अब ये आप देख सकते हैं कि इनका कोई ग्रुप नहीं है, बाय डिफॉल्ट है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी स्टार्ट करेंगे। कैटेगरी बनाने के लिए आपको क्या है, आप गेटवे टैली से आओगे, क्रिएट के अंदर जाओगे, आपको यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी की ऑप्शन नहीं मिली तो शो मोर पे जाओगे, कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ पे आपने पूछ रहा है कि आपने बाय डिफॉल्ट डू यू वांट क्रिएट प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, हमने कहा सी। हाँ, अब हमने ये यहाँ पे टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे एलोकेशन रेवेन्यू आइटम को यस करना है, कंट्रोल ए कर लेना है। अब आपने अपने कॉस्ट सेंटर में एडिटिंग करनी है जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं इन। अब उसके लिए हम लोग क्या जाएंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, ऑल्टर पे जाने के बाद कॉस्ट सेंटर, एडवर्टीजमेंट क्या है, हमने प्राइमरी के अंदर नहीं रखना, हमने किसके अंदर रखना है, टाइप, स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। वैसे ही पेपर एडवर्टीजमेंट में भी आप लोग सेम करोगे, कैटेगरी सिलेक्ट करोगे कॉस्ट सेंटर में कि ये किसके रिलेटेड हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपका डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट समरी, आप देख रहे हो कि आपको एक ग्रुप नाम से अब दिखने लग गया। अब मैं आपको एक छोटा सा और सैलरी का बना के दिखाता हूँ। सपोज करो आपके ग्रुप में 50,000 सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना है, सैलरी एम्प्लॉय सैलरी, कंट्रोल ए करोगे, सेव हो गया। अब हम लोग कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे, यहाँ पे इसको करोगे एम्प्लॉय सैलरी, सपोज करो दीपक सिंह, मैं 5 एम्प्लॉय का बनाऊंगा, आप बना लेना। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मैंने उन एम्प्लॉय की सैलरी को मेंटेन कर दिया। अब आपने क्रिएट करना है क्या, लेजर, सैलरी नाम का क्रिएट करते हैं, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं। सैलरी इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब आपने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करना, अगर आपका ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो प्रेस करना F12, वहां पे आपको दिख जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा मैं। अब हम लोग चलते हैं वाउचर में एंट्री करने, वाउचर, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास एप्लीकेबल नहीं करना, हमने सैलरी, आप देखते हैं हमने सैलरी वाला सिलेक्ट किया जो अभी लेटेस्ट बनाया। मान लो 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग अपने एम्प्लॉय को, पर एम्प्लॉय हमारा 10,000, यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी लोगे, उसके बाद दीपक
10,000, दीपा 10,000। इस तरीके से आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, नहीं तो एक सिंगल एंट्री करोगे उससे पता नहीं लगता कि हमने किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी है। कंट्रोल ही करोगे। अब कौन से बैंक से करना है, HDFC बैंक, जो भी आपका बैंक होगा। ये अभी नेगेटिव इसलिए दिख रहा है, हमने being salary paid by HDFC बैंक, कंट्रोल ही करके सेव कर लोगे। अब आपने रिपोर्ट देखनी है तो डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, स्टॉक समरी, अब आप देख सकते हो। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं कि आपने इनकम ग्रुप का बनाना है। सेम आपके पास गोडाउन, आपके पास गोडाउन है, आप उससे क्या कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो। आपके पास 5 गोडाउन है जिसमें आपके पास हर महीने 50-50 एंट्री 50,000 की एंट्री होती है हर महीने। तो ये आपने 12 मंथ की करनी है। इस प्रकार आप एनालाइज कर सकते हैं। अब ये कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप क्या है ये जान लेते हैं। ब्रेकअप का मतलब है कि आपने किस का देखना है कॉस्ट सेंटर के अंदर, ठीक है। जैसे दीपक सिंह का देखेंगे तो सिर्फ हमें दीपक सिंह का ही दिखेगा, सैलरी दी हुई है 10,000। तो इस तरीके से आप हर महीने अपने एम्प्लॉय की सैलरी को मेंटेन कर सकते हो कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी है। इसके बाद आप लेजर से भी कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं सैलरी, तो सैलरी में देखोगे कि एक पर्टिकुलर नाम से बन गया कि किसको कितनी। अब इसमें हम पर्टिकुलरली देख भी सकते हैं कि 10,000 रिसीव की है उस पर्सन ने। कॉस्ट सेंटर बनाने का बेनिफिट। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉस्ट सेंटर क्लास। अब हम कॉस्ट सेंटर क्लास में हम लोग क्यों बनाते हैं। कॉस्ट सेंटर क्लास इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग अपनी रिपोर्ट को क्या कर सकें, सेग्रीगेट कर सकें इजीली। चलो चलते हैं किस प्रकार। आपने गेटवे टैली से जाना है, क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं दिखती है तो आपने क्या करना है, शो मोर पे जाना है, कॉस्ट सेंटर क्लास आपको दिखेगी। अब आपने यहाँ पे, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक गोडाउन है रामनगर पिरुमदारा। तो हम लोग हर महीने 50,000 क्या करते हैं, पे करते हैं। तो आपने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, ऑल्ट सी से कर सकते हो या प्राइमरी ऑल्ट सी, ऑल गोडाउन लिख लेते हैं। ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट सेंटर क्लास हो गई है, गोडाउन रेंट। कंट्रोल ए कर लोगे, ये हमारी कैटेगरी होगी। अब हमसे पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर क्लास, ये हमने बनाई नहीं है तो ऑल्ट सी करोगे, रामनगर एम्प्लॉय सैलरी के अंदर नहीं रखना, ये याद रखना आपने, किसमें रखना है, गोडाउन, ऑल गोडाउन रेंट। अब हम लोग हर महीने 10,000 यहाँ से रिसीव करते हैं, 10,000 पिरुमदारा से, ऑल्ट सी कर लोगे, पिरुमदारा, कंट्रोल ए, 50%, 5,000 रिसीव करते हैं रामनगर से और पिरुमदारा से रामनगर। अब आपने ये कॉस्ट सेंटर बना लिया। अब आपने क्या करना है, एंट्री करनी है। जब भी वाउचर पे जाओगे, अगर आपको कॉस्ट सेंटर, आप देख रहे हो मेरे राइट हैंड साइड पे कॉस्ट सेंटर क्लास, ये ऑप्शन एक्टिवेट है। अगर ये आपके उसमें एक्टिवेट नहीं है तो आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी। आपके राइट हैंड साइड पे बॉटम पे F12 ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉस्ट सेंटर को यस करना है। ये देख सकते हैं आप,
हमने यस किया हुआ है, इस वजह से आपको दिख रहा है। अब मैं आपको नो करके दिखाता हूँ। ये कंट्रोल ए, आप देखोगे कि आपके डेट के नीचे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है ये, और यहाँ से कॉस्ट सेंटर क्लास एक्टिवेट करना है, तभी हमारी एंट्री हो पाएंगी। अब यहाँ पे गोडाउन रेंट आपको दिखेगा, हमने गोडाउन बनाया हुआ था। अब हमने लेजर भी क्रिएट करना है। गोडाउन रेंट का हमने ऑलरेडी लेजर क्रिएट करके रखा हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से लेजर करोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब हमने टोटल कितना किया हुआ है, 10,000 खर्चा किया किससे, SBI बैंक से। इसकी हेल्प से, हमारी ये वाउचर क्लास लगाने की हेल्प से हमने बैकएंड में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि 5,000 हमने रामनगर के रेंट के लिए दिए हैं, और अनदर 5,000 कहाँ पे, पिरुमदारा रेंट के लिए। यहाँ पे आप नरेशन पास कर दो, ये बीइंग गोडाउन रेंट रामनगर और पिरुमदारा पेड बाय SBI बैंक। कंट्रोल ए करोगे। अब आपने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर किस तरह यूज किया, अब देखना ऑटोमेटिकली वो रामनगर पिरुमदारा पेज अप करोगे, प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि ये आपकी एंट्रियां ऑल गोडाउन रेंट के अंदर ये इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही हैं। ये आपकी ऑल गोडाउन रेंट क्या है, कैटेगरी है, और रामनगर पिरुमदारा कॉस्ट सेंटर है। अब इसकी रिपोर्ट अगर आपने देखनी हो तो कहाँ पे देखोगे, गेटवे टैली पे जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी समरी। अब आप देख सकते हो कि आपको अलग कैटेगरी वाइज भी रिपोर्ट डिस्प्ले कर रहा है। ये 15,000 आप देख सकते हो यहाँ पे, टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट 30,000, ऑल गोडाउन रेंट 10,000। इस प्रकार आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, यानी कि ब्रेकअप का मतलब है कि आप इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर के ऊपर देखना चाहते हो। सपोज करो रामनगर में कितना खर्चा, ये मैंने सिर्फ अप्रैल का किया हुआ है। आपकी असाइनमेंट है कि ये 12 मंथ का आपने हर महीने की पहली तारीख को पे करना है 10,000, और इस प्रकार एंट्री आपको डिस्प्ले होगी। आपने फिर वो मुझे क्या करना है, मेल करना है, सेंड करना है मेरी मेल आईडी पे। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए।